immediate approval to investigate all the past exam conducted from 2014 to 2022 to SSC based on popular demands of this parent. This, including the AE civil paper leakage case, was handed over to the CBI. Out of 2 cases handed over to CBI, the case relating to FIR number 12/2022 pertains to old examination conducted from 2014 to 2022. As such, chairman, secretary, member, officials of APPSC and any other officials, private persons are already under the purview of investigation. Based on finding of the investigation, appropriate action will be taken by the investigating agency. The investigation in this matter is now with the Central Investigation Agency, that is CBI. As per the CBI, as per the demands made by the aspirants, association and student unions, the state government has no jurisdiction in the matter now. Second point, immediate constitution of fast-track court for prosecution of accused involved in APPSC paper leakage scam. The state government has written to the Honorable Guwahati High Court to designate District and Session Court UPA or any other District and Session Court as a special fast-track court to take up the APPSC paper leakage cases. The Honorable Guwahati High Court has agreed to designate District and Session Court UPA as a special fast-track court to take up the APPSC paper leakage cases. Third point, immediate establishment of state administrative tribunals. The state has agreed to recommend setting up of a standing grievances redressal committee and institutional mechanism to deal with the grievances of the candidates or the aspirants. Fourth point, immediate endorsement of ED, that is Enforcement Directorate, and court monitor approved, and also immediate seizure of asset, properties, movable and immovable, of all the accused and incumbents of APPSC along with their kids and kins. Demands for a high-level inquiry committee headed by retired Supreme Court and High Court judge for examination wherever paper leakage took place from 2014 to 2022 will be accordingly requested by the state government to Government of India within this month. On the request of the aspirants, the state government will formally write to ED to investigate all the incumbents in the APPSC from 2014 to 2022 within this month. आप लोग को ये मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, शुरुआत से हम लोग बोला will be, हम लोग आप लोग को accountability and transparency दिखाएगा. Point number 5, immediate disclosure of the status of various department inquiry reports initiated so far against the various suspended or arrested officials and subsequent dismissal or termination thereof. During the course of investigation, 41 government employees were arrested. The status of arrested employees and action taken against them are as under. Point number 1, regular government employees 20 numbers. As per the service rules, departmental inquiry has to be conducted against the regular government employees for charges framed against them. Accordingly, memorandum of the articles of charges, appointment of inquiry officers and presiding officers, presenting officers, holding of inquiry, submission of inquiry report have to be followed in stages. Award of punishment is determined on finding of inquiry. All these 20 arrested regular employees have been suspended and departmental inquiry has been started and it is at different stages. Point number 2, employee under provision number 20, जो provision में है 20 officials है. The mandatory 1 month prior notice of termination as required under CCS rules have been already been issued in the 19 out of above 20 cases. The
The appropriate order, including termination from the service in respect of these 19 employees, will be issued on expiry of 1 month period. Out of above 20 employees, 1 employee is from horticulture department in whose appointment order the provision for termination of service by serving 1 month's prior notice was not provision. In these cases, also appropriate termination order is being issued after consulting with the law department. Contractual employee, 1 numbers. The service of contractual employee have already been discontinued. Further, on the request of this parent, action for termination of Takesh Jairang will be initiated immediately. Point number 6, immediate disclosure of 3-member committee report. The entire report was placed in the public domain and copies handed over to the aspirant also. Point number 7, suspension of all the upcoming examination till the completion of investigation process and endorse UPSC to conduct the upcoming examination till the completion of investigation process. आप लोग थोड़ा सबर कीजिए, आराम से सुन लीजिए. All the examination which were scheduled to be conducted by the APPSC were cancelled, postponed immediately after the paper leakage issue came to light. As per Article 315 Clause 4, the Public Service Commission for the Union, if requested so to do by the governor of the state, may, with the approval of President, agree to serve all or any of the needs of the state. On the request of the aspirant, the state government will take up with UPSC to conduct the pending exam within 1 month. Point number 8, demand number 8, all the higher officials above the rank of Deputy Secretary must be investigated from 2014 to 2022. This demand is already covered under the action taken by the state government as stated as point number 1. Point number 9, any examination found to involve with malpractices like paper leakage scheme must be immediately declared null and void. Any examination found to be involved with malpractices like paper leakage scheme must be immediately declared null and void. The state government has seen the request for declaring the exam null and void, where issues and malpractices like paper leakage, etc. have come to notice. Accordingly, it is being sent to APPSC, which is the competent authority to decide this. यहाँ पे देखिए, ये सब हम लोग का कंटिजेंस पॉइंट है. पहले से जितना भी एस्पिरेंट है, हमने बोला कि हमेशा क्या करता है, नल एंड वॉइड कराना या एग्जाम वो करने से पहले क्या करता था, कोर्ट में जाने का बात करता था. हम लोग बोला है कि इस बार हम लोग कोर्ट में नहीं जाएगा. पहले स्टेट गवर्नमेंट आप कमीशन को रिकमेंडेशन कीजिए हम लोग का डिमांड को. इसी डिमांड को गवर्नमेंट में कहा है कि ये जो कमीशन को ये जो डिमांड है नल एंड वॉइड के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा. ये जो बार सुन लीजिएगा, ये जो नल एंड वॉइड का केसेस है, आप कहीं भी देख लीजिए. हम लोग भी पता था स्टेट गवर्नमेंट नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है, बट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में ही वो चोर छुपा हुआ है कि नहीं. स्टेट गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है, वो पोस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट का ही था. इसलिए हम लोग बोला है कि फर्स्ट यू हैव टू रिकमेंड टू द कमीशन कि ये जो डिमांड है इसको आप वो करना पड़े, नल एंड वॉइड किया जाए बोल के. ये लोग इसको रिकमेंड करेगा बोला है. देखो, इंक्लूजन ऑफ पॉइंट नंबर 10, inclusion of 2 members from the aspirant in the preparation of SOP of APPSC. The conduct of examination and procedure for the same, including ensuring confidentiality, is the mandate of the commission, for which it prepares the standard operation procedure. The input of the aspirants will be sent to the commission for consideration. हम लोग का इनपुट लिया जाएगा उसमें.
immediate legislation and implementation of Whistleblower Act with special provisions for protection and rewards of the whistleblowers. A law has been enacted by the Parliament, and by virtue of its extension clause provided under the subclause 2 of Section 1 of the Act extends to all of the India. Cabinet, by its decision dated 21/12/2022, asked Vigilance Department to frame rules under Section 26 of the Whistleblower Act. Gyamar Padang will be recognized appropriately for his contribution. Justice, point number 12, justice for Ms. Mudang Yabeng, PWD deprived candidates, and streamlining of selection criteria for persons with disabilities candidates. The state government is favorably disposed towards the issue of Ms. Mudang Yabeng and has already conveyed to APPSC to re-examine and reconsider the matter. The state government will reiterate this position to the APPSC. Streamlining of selection criteria for persons with disability. Candidates will be taken up appropriately. Aspirant will give input for the same. ये 13 point आप सुन लीजिए. Immediate recording of the 3 officials posted under APPSC. With the merger of the APPSC cadre with Secretariat cadre and consequent transfer, the action has been completed. The government agreed to recall. The personnel department will ensure fixed tenure for 2 years of officers posted in APPSC, subject to administrative exigencies. समझा है? 2 साल के लिए कमीशन में ऑफिसर को बिताया जाएगा. जब भी पहले का जैसा तके जेरंग को 92 से अभी तक 22 तक नहीं बिताया जाएगा. Further, the decision were taken. The demand for cancellation of order, the present chairman and member of Arunachal Pradesh Public Service Commission was agreed. The same will be taken to cabinet for approval. A press search committee will be constituted. A column for declaration of properties of all applicants will be added in the application form. All injured in the protest will be compensated as per norms after seeking report from the DC. The delegation agreed to withdraw the band call and assured to disperse the crowd. ये हम लोग के लिए एक बर्डन दिया गया है कि जितना भी आज हम लोग का डिसीजन लिया गया है, ये जो हम लोग वोट फ्रंट में है, हम लोग को एक ये बोझ दिया गया है कि बंद कॉल को हम लोग वो करना चाहिए, कॉल ऑफ करना चाहिए एंड डिस्पर्स करना चाहिए क्राउड को. The aspirant will give inputs for rules under Whistleblower Act, Arunachal Pradesh Public Service Commission, Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment Act 2023 and SOP. The Pan Arunachal Joint Steering Committee will give input in the reformation process of APPSC. All the applicants were fully satisfied and all the participants were fully satisfied and thank the state government for proactive steps on the above points. Wait. यहाँ पे देखिए, प्लीज. हम लोग यहाँ पे सब इंटेलेक्चुअल है. हम लोग नाबुम निपो के लिए आज जितना भी डेलीगेशन किया है, जितना भी हम लोग का जो पेरेंट्स लोग आया है साथ में जो मीटिंग में, हर एक ने हम लोग बोला है कि निपो का अरेस्ट होना चाहिए. बट लेकिन आप लोग सुन लीजिए, ये जो है ये लिखा है, सुनिए प्लीज. यहाँ पे देखिए, चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स एंड ऑल अदर ऑफिसर ऑफ APPSC फ्रॉम 2014 to 2022 must be immediately brought under the purview of the investigation. यहाँ पे चेयरमैन का भी नाम आता है, जितना बाकी ऑफिसर का भी नाम आता है. सुनिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए बोला है कि यहाँ पे हम लोग का आर्गुमेंट ये था, सुन लीजिए, यहाँ पे हम लोग का आर्गुमेंट ये था कि 6 महीना से नीपो नाम को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया। वो लोग का कहना है कि पर्स हम लोग को SIC में रखने नहीं दिया, CBI को दिया। CBI वो जो स्टेट गवर्नमेंट का परव्यू पे नहीं आता, इसलिए हम लोग ने बोला कि नाबम नेपो का जो प्रॉपर्टी है, नाबम नेपो का प्रॉपर्टी को अभी ED सीज करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ED, यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, देखो, on the request of the aspirant, state government will formally write to the ED to investigate all the incumbents in the APPSC from 2014 to 22. Within this month, ये महीना का अंदर में ED इंडोर्स किया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन टीम ने यहाँ पे लूपहोल्स किया है। इसलिए हम लोग ने बोला है कि नाबम नेपो का प्रॉपर्टी को सीज करके अब छानबीन करके उसका सैलरी स्टेटमेंट को निकाल के जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट क्रिएट करके रखा है उसका थ्रो से ये अरेस्ट करना चाहिए, हम लोग बोला है। इसलिए विद इन दिस मंथ ED को यहाँ पे वो करना है। और सुनिए यहाँ पे और सुनिए, यहाँ पे ऐसे कोई भी यहाँ पे अगर आप लोग का साथ में कुछ भी एविडेंस है नेपो नाबम का अगेंस्ट में, पक्का सबूत है, आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी एविडेंस है इन्वेस्टिगेशन टीम में दे दीजिएगा। नारायण बॉयद को क्लियर नहीं क्या? सुनिए, नारायण बॉयद को सुनिए, नारायण बॉयद को देखिए, यहाँ पे नारायण बॉयद को जो हम लोग का डिमांड किया है, इसको गवर्नमेंट जो कमीशन को रिकमेंड करेगा, ठीक है ना, ये महीना का अंदर में करेगा। देखिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे ऐसे बात है, हम लोग कमीशन को 2 जगह पे हम लोग बिताया। सुनिए, हम लोग एक तरफ पे डिमांड किया है कि एग्जामिनेशन को UPSC, अपकमिंग एग्जामिनेशन को UPSC में करवाने के लिए बोला है, अपकमिंग एग्जामिनेशन को UPSC को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए बोला है। एक तरफ से ये जो नारायण बॉयद का केसेस है, इसको जो अभी कमीशन उसमें बिताएगा और उसको देखेगा बोला है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको रिकमेंड करेगा। और सुनिए, जितना भी हम लोग का जो डिमांड है, जितना भी हम लोग अंदर में बात किया, इन एंड आउट आप लोग को सुना दिया है। और इसलिए आप लोग का रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी यहाँ पे पेरेंट्स है, हम लोग गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे और वायलेंस क्रिएट नहीं करेगा। और आज मीटिंग का साथ बाद में अगर कोई वायलेंस क्रिएट करता है बोलने से, वी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एंड ऑल द पेरेंट्स, those who have participated in this movement should not be held any responsible। और जितना भी ये मूवमेंट में हम लोग को पेरेंट्स लोग साथ दिया है, उसको आप लोग को हम धन्यवाद देता है। और जो वेल विशर्स है, जो हम लोग को खाना पीना खिलाया, उसको भी हम साथ देता है। अरे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद में आई ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जितना भी हम लोग का अंशु एग्जीक्यूटिव है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, फर्स्ट से लास्ट तक जितना भी हम लोग को 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को रखा है, मेरा तरफ से हम पान अंशु को हम धन्यवाद देता है। और कल का जो 1 कॉल में हम लोग का न्यू दिल्ली में थाना में एक जो बेटी पैदा हुआ है, उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि कल को इस जो सिस्टम में अगर चेंज होता है बोलने से आप बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। सुनिए, अच्छा आप लोग नारायण बॉयद का बात करते हैं तो सुने, आप लोग सुनो, आप लोग
अगर नारायण बोध को अभी रोक करते तो इस कमीशन को अभी सेटअप करने देगा? ये चेयरमैन को अभी आप लोग आने देगा? ये चेयरमैन सुनिए, ये चेयरमैन को अभी हम लोग जो तहकीक करने जा रहा था उसको हम लोग अभी रुका दिया, ठीक है ना? सुनो, इसलिए जब भी कमीशन यहाँ पे खत्म होगा तभी नारायण बोध को ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रिकमेंड करेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कमीशन उसको गवर्नमेंट से कमीशन को रिकमेंड किया जाएगा। जब नया चेयरमैन यहाँ पे आएगा, सर्च कमेटी को हम लोग रिगठन करने के लिए बोला है। जब नया चेयरमैन यहाँ पे आ जाएगा उसी डिमांड को हम लोग उसमें भी फिर वो करेगा। चेयरमैन को अभी फिर हम लोग बोलेगा चेयरमैन को तो आ लेने, क्योंकि चेयरमैन को हम लोग फिर अभी वोट टेकिंग करने नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना? अगर चेयरमैन आएगा तभी नारायण बोध का होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको पहले रिकमेंड कर देगा। देखिए यहाँ पे सुनिए, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, सुनिए आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, जितना भी हम लोग बात किया है यहाँ पे किसी का अब्बा पे नहीं पहना, आप लोग नहीं फंसना चाहिए। जितना भी हम लोग का सीरियस पेरेंट और जितना भी पेरेंट्स है, आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, जितना भी हम लोग ये बाहर पे अंदर पे बात किया है आप लोग का लोग पर के सुना दिया। ऐसे यहाँ पे कोई छुपा छुपी नहीं किया हम लोग। और आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, कोई बीच में से अगर अब्बा पैराता है ये आप लोग का गलती होगा, इसलिए कुछ भी अगर आप लोग को करता है प्लीज आप लोग यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट मत कीजिएगा। सुनिए यहाँ पे देखिए 6 महीना से हम लोग यहाँ पे लगा है, अभी हम लोग बिका है क्या? अभी कोई हम लोग बिका नहीं, किसी इशू पे हम लोग डाइवर्ट नहीं किया, हर एक मुद्दा पे हम लोग बात किया है। हम लोग का जितना भी ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर्स है, जितना भी एस्पिरेंट है, अनलाइक अदर बंद कोर्स, अनलाइक अदर मूवमेंट्स, हम लोग का यहाँ पे किसी भी एस्पिरेंट को हम लोग फंसने नहीं दिया। इसलिए हम लोग पर से बोले इशू भी सॉल्व होना है, यहाँ पे कोई बलिदान नहीं जाना है, किसी भी एस्पिरेंट का कैरियर बर्बाद नहीं होना है। We just need a logical conclusion and we just need a respectable exit. इसलिए जितना भी हम लोग का एस्पिरेंट को हम रिक्वेस्ट करता है, आप लोग प्लीज ये जो पॉजिटिव मैसेज को आप लोग पॉजिटिवली पास कीजिएगा, सो दैट नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए। हेलो अरुणाचल, अच्छा यहाँ में सुनो सुनो सुनो, अच्छा ये ऐसा है, ये जो मूवमेंट हम लोग 6 मंथ्स पहले शुरू किया था, आई थिंक हम लोग यहाँ तक आएगा इतना भी नहीं सोचा था। तो ये जो मूवमेंट है हम सबको मालूम था कि ये जो क्राइसिस है ये हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक रेवोल्यूशन लेके आने का हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आज जैसे कि आप लोग शायद ये टेक्निकलिटीज को आप लोग शायद यहाँ पे नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ने से तब समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसा है, सुनिए, यहाँ पे ऐसा है कि जो आप लोग स्पेसिफिकली नल एंड वॉइड पॉइंट को आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए आप सबको अच्छा से क्लियर से बता दो, नल एंड वॉइड जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, पहले बात। दूसरा बात यह है नल एंड वॉइड ओनली एंड ओनली एपीपीएससी कमीशन कर सकता है। तो अभी क्या हुआ, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि जितना भी एग्जामिनेशन 2014 से लेके 2022 तक जितना भी एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है, तो कमीशन जो गवर्नमेंट की तरफ से वो एक रिकमेंडेशन लिखेगा कि जहाँ जहाँ में एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है उसको नल एंड वॉइड करना है, ये लिखेगा। अभी जैसे एक नया कमीशन एस्टेब्लिश होगा, ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है वो सब नलिफाइड हो जाएगा,
समझ गया ना, वो है। और दूसरा बात ये है, यहाँ पे देखिए आप लोग निपो नाबम का अरेस्ट का बात कर रहे हैं। हाँ, निपो नाबम का अरेस्ट जो है, ये हम लोग का जितना भी हम लोग आज गया था, सबका हम लोग का टॉप आर्ग्यूमेंट में था। क्योंकि निपो नाबम यहाँ पे तकेत जरंग इतना ज्यादा पेपर लीकेज किया है, ये बिना निपो नाबम का इन्वॉल्वमेंट का पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो चेयरमैन था। तो हम लोग हर पॉइंट को हम लोग रखा, तो उसका तरफ से अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो उसको किया है बोला है। अभी उसमें क्या हो गया, हम लोग बोला है अभी ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ईडी को एंडोर्स करना है, और ईडी को एंडोर्समेंट विद इन ये मंथ के अंदर में कर देगा बोला है। और उसमें अभी छानबीन होगा। देखिए ये मूवमेंट जो है, ये जो है अभी देखिए यहाँ पे ऐसा है, अरेस्ट जो है, अरेस्ट हम लोग स्ट्रांगली रखा है निपो नाबम के लिए, सिर्फ निपो नाबम के लिए सिर्फ नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन हो गया, जो जब बाकी जो ये जितना भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, जितना भी मेंबर्स इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ में इन्वेस्टिगेशन होना है, जिसको अरेस्ट करना है उसको करना पड़ेगा। तो अभी वो सब जितना ऑफिशियल्स है, सबका प्रॉपर्टीज को अभी ईडी उसको छानबीन करेगा और उसको सीज करेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को एश्योरेंस मिला है। तो यहाँ पे जितना लिखा है ये रिटर्न फॉर्म में मिला है। अभी यहाँ पे जितना है, अभी आप सबको बता दो, यहाँ में जितना इश्यूज है, यहाँ में टेक्निकलिटीज बहुत इन्वॉल्व है। यहाँ में अगर आपको हम क्राउड में अभी ऐसे बता देंगे तो आप सबको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए, और यहाँ में और एक चीज है, जैसे कि हम लोग ने कहा कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ईडी का चाहिए, ये दोनों हो गया। अभी कोर्ट मॉनिटर प्रोब, जुडिशियल मॉनिटर प्रोब, ये क्या है आप सबको समझना है। ये है हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी। यहाँ में जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है 2014 से लेके 2022 तक, जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है, इसको अभी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप करना है। तो विद इन अ वीक ये भी सेटअप किया जाएगा, और इसका रिकमेंडेशन का हिसाब से निपो नाबम और जितना भी एक्यूज इन्वॉल्व है, सबका सब अरेस्टेड हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि इसको, ये रिपोर्ट जो आज लेके आया है, आप सब अभी हम लोग पब्लिक डोमेन में रख देगा, आप सब गो थ्रू कीजिए। और जितना भी हम लोग का डिमांड है, देखिए ये जो है हम लोग बोलता है ना, हम लोग का जो ये जितना मूवमेंट था, हम लोग एक ये दिया था कि दिस इज द डॉन ऑफ अ रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन ऐसा है, रेवोल्यूशन इज नॉट द डेस्टिनेशन, रेवोल्यूशन इज द जर्नी। तो ये जो रेवोल्यूशन है, आप सबको बता दो, आउटकम इज नॉट द रेवोल्यूशन। यहाँ में हम लोग का जो, यहाँ में चार्टर ऑफ डिमांड हमने रखा है, हमारा जो ये रेवोल्यूशन, हम जो पूरा जनता हम लोग का जितना अरुणाचली यहाँ में पार्टिसिपेट किया है, नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, ये है। इसलिए देखिए ये टेक्निकलिटीज को आप सबको यहाँ में समझा नहीं सकता है, आप सब लोग करिए। और ये सब हम लोग रिटर्न में एश्योरेंस लिया है, ये है। तो इसलिए देखिए अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को जितना हम लोग मांग किया है, 13 पॉइंट ऑफ डिमांड, अभी इसको अगर नहीं करेगा तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेगा, ये है। इसलिए आप लोग मत सोचिए कि हम लोग यहाँ से पीछे हटेगा, हम लोग तो रहेगा। और जितना भी यहाँ पे आया है, यहाँ में सब हम लोग सब ये इशू में सब इक्वल पार्टिसिपेंट है। तो इसलिए अभी देखिए यहाँ में कुछ बात होता है जिसका इंटरप्रिटेशन आप लोग आराम से पढ़ के समझ में आएगा, इसलिए ठीक है। तो इसलिए अभी हम आप सबसे रिक्वेस्ट करता है, यहाँ में जितना भी हम लोग का डिमांड है, ये डेफिनेटली फुलफिल होने जा रहा है। हम लोग रिटर्न फॉर्म में मिल गया है, ठीक है। तो आप सबको यही रिक्वेस्ट करना है कि पीसफुली आज से हम लोग बंद कॉल को कॉल ऑफ कर देगा, और जितना भी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग को पूरा अरुणाचल बंद कॉल कर दिया था, अभी हम लोग उसको कॉल ऑफ कर देना है। और वी हैव टू गो, अभी पीसफुली हम लोग यहाँ से जाना है। और हमारा जितना भी यहाँ पे जो भी तौर पर हुआ है, हमारा एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, अभी वी हैव टू ब्रिंग बैक आवर सिटी टू नॉर्मल सी, वी हैव टू ब्रिंग बैक आवर स्टेट टू नॉर्मल सी अगेन। थैंक यू।
देखिए, हम लोग जितना भी हम लोग ये जो डिमांड प्रेस किया है और ये मूवमेंट को हम लोग लेके आए अभी तक का, जितना भी हम लोग बात किया है पब्लिक का सामने में हम लोग रखा है, लेकिन अभी भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग का जो कोई यहाँ पे पीछे में खड़ा करके भी ऐसे उठ के चिल्ला के इंसल्ट करा है। आई एम टेकिंग नोट ऑफ दैट, प्लीज डोंट मेक जोकोबास। हम आपसू को बॉयकॉट कर सकता है। वो जो लड़का इंसल्ट कर रहा है, लड़की जो इंसल्ट कर रहा है, अगर वायलेंस निकलता है बोलने से अभी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। प्लीज हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोई वायलेंस इंसल्ट नहीं करना है, जो पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो भी पॉजिटिव मैसेज हम लोग दे रहा है, आप लोग पॉजिटिव मैसेज पास कीजिए। इसलिए जितना भी हम लोग का यहाँ का मूवमेंट अभी भी वो है, आप लोग पूरा देख रहे हैं। ये रिटर्न में लेके आए, इसको हम लोग सोशल मीडिया पे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का पेज में हम लोग इसको डाल दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा प्लीज। No more question, please. No more question. बंद कॉल अप हो गया, नहीं बोल देगा। बंद कॉल अप हो गया है, बंद कॉल अप हो गया है। हम अपील करते हैं ऐसे इशू चेयरमैन ऑफ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, जितना भी हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड है उसको गवर्नमेंट ने रिड्रेस किया है। जो कुछ भी कंफ्यूजन हो, ये जो माइनस ऑफ मीटिंग है, इसको हम लोग पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का पेज में हम लोग अपलोड किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके हाईजैक करना चाहता है, दैट इंडिविजुअल विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसलिए आज से जो भी हम लोग का एक्सपीरियंस और पेरेंट्स ने जो ये मूवमेंट में साथ दिया है, इसको हम धन्यवाद देता है। और हुई ऐसे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम बोल रहे हैं कि ये बंद कॉल और कंटिन्यू होगा, आज कॉल अप होना चाहिए। यहाँ का बाद इसका बाद अगर कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, दैट इंडिविजुअल हैज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और आज तक जितना भी अगर हम लोग का प्रोटेस्टर को, एस्पिरेंट को, इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को किसी भी जगह पे ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश और केस रजिस्टर किया है, उसको भी गवर्नमेंट ने बोला है कि केस विड्रॉ किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी इंजुरीज हैज बीन हैपन, that will be compensated as per the norms. उसको डीसी का थ्रू से दिया जाएगा बोला। Thank you. So what about the students जो this fight नहीं है? What? I will decide. लड़का लोग को एफआईआर करके रखा है और जो लड़का लोग को डिटेन करके रखा है और जो मार खाया है उसके लिए हम गुस्सा है। तो वहाँ में मेरा तरफ से क्लियर था कि आज का बाद जो जब तक हम लोग वहाँ से निकलेगा और जब तक तोड़फोड़ हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो सरकार ही खुद का ऊपर माना रक्स है, उस जिम्मेवारी है। और एक भी लड़का बच्चा, किसी को भी, लड़की और लड़का, किसी को भी एफआईआर नहीं होगा और किसी को एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा। और दूसरा बात, जो मार खाया है उसको सबको माने सरकार का तरफ से कंपनसेट करेगा, मेडिकल खर्च करेगा। वो आपका तरफ से क्या आज बंद किया जाएगा ना, क्या आगे क्या होगा? नहीं, मेरा तरफ सबसे पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ आगे ऐसा बंद कॉल मत कीजिए, क्योंकि सरकार हम लोग का 13 पॉइंट डिमांड जो ये पान अरुणाचल टीम का जो 13 पॉइंट डिमांड है उसको सरकार एक्सेप्ट किया है पहला बात। और हम उसमें 2 पॉइंट ऐड किया है कि जो बच्चा लोग का जो मार्क आया है और जो बच्चा लोग को एफआईआर लॉन्च करके रखा है उसको पूरा टोटली हटाओ बोल के सरकार ने उसको तुरंत वहाँ में ही पूरा एफआईआर को भी हटा दिया है। तो ये मेरा 2 पॉइंट के लिए इसलिए हम आज गुस्सा है। तो पान अरुणाचल बात भी माने और सरकार, तो हम जितना भी और डिस्ट्रिक्ट में जितना भी आज एफआईआर हुआ है, जो जितना डिस्ट्रिक्ट का उसको भी सरकार जो बोला उसको पूरा को कैंसिल कर दो बोला है। तो डीजी को ही बात किया है, डीजी जो बोला हाँ तब तो कैंसिल कर देगा बोल के सारा डिस्ट्रिक्ट का भी सारा स्टेट का जितना एफआईआर हुआ है तो आज का को पूरा कैंसिल कर दिया है। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कल बंद कॉल ऑफ हो चुका है, ऑफ कर दिया है पब्लिक का तरफ से, तो कल से बंद कॉल नहीं करना। और हम एक अपील है कि हो सकेगा तो कि आप लोग भी साथ में रास्ता को सफा करने में, रास्ता को थोड़ा हम लोग इतना देखो तोड़ फोड़ में तो हम लोग ही किया है, पब्लिक ही किया है, इतना गंदा पब्लिक ही किया है।
हम सब पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ कल सोशल सर्विस में भी आप लोग थोड़ा मदद कीजिएगा। सोशल सर्विस कल थोड़ा करना है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में इंडियन प्रेसिडेंट आ रहा है, ये बहुत कुछ नसीब है। तो हम सोचते हैं कि हम लोग कल सोशल सर्विस में भी साथ देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी है जो एकदम सेटिस्फाई नहीं है, जो आउटकम को लेके, स्पेशली नल एंड वॉइड का जो पॉइंट है उसको लेके। देखिए सुनिए नल एंड वॉइड, ये मेरा पॉइंट नहीं है, क्लियर। ये वो लोग खुद ही जाने, क्योंकि वो लोग एक मेंबर है, वो लोग का टीम है, वो लोग खुद बोला है। देखो हम आगे भी बोला है, हम जब हम बोला है कि एक्सपेरिमेंट जो लड़का लोग को ले जाएगा, उसका बाद जो टीम ले जाएगा बोला है, तो वो लोग का एक मेंबर है, वो लोग का कमेटी है, वो लोग ही कुछ जानता है, वो लोग का भाग है। अच्छा होना खराब होना वो लोग सेटिस्फाई है बोला है, हम लोग सेटिस्फाई है, ठीक है। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस हमको बोला है कि मेरा काम इतना ही था कि पब्लिक को एक साथ जागरूक होना है, और ये जो ये क्या बोलते हैं कल का बंद कॉल को शुरू करना है। उसके बाद चेयरमैन गठन को हटाना है, नवम नेपाल को अरेस्ट कराना है। नल एंड वोट तो देखो क्लियरली वो मेरा सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं है, नल एंड वोट तो वो लोग का है। लेकिन इसमें एक ऐसा है, देखो भाई बहन जो संटी ने बोला है, इसमें एक मेंबर रखा गया है, इसमें चेयरमैन जब गठन करेगा मेंबर रखा गया है। मेरा शायद इस मेंबर में सरकार के इसमें हम अच्छा पॉइंट लगा है कि अगर आप लोग प्रॉब्लम होता है, आप लोग को अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप लोग ओपन, सरकार का दरवाज़ा खुला है। अब इसमें क्या ऐड करना है, नल एंड वोट में भी क्या ऐड करना है, कैसा करना है, आप लोग आइए, हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करेगा बोला। ये सरकार का बहुत अच्छा बात है। और अगर भाई बहनों शांति नहीं होता है तो आपका जो मेंबर बना के रखा है, जैसे कि जो आप लोग कमेटी बना के रखा है, चेयरमैन हो गया और मेंबर हो गया, वो लोग एक बार आप डिस्कस कीजिए कि सरकार जो आप लोग को री से आओ बोला है तो आप लोग इसको री से बनाने दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसा वैसा कमेंट नहीं कर देगा। बस ये जो सरकार जो बोला, मेरा लिए दरवाजा हमेशा खुला है, आप लोग आ जाइए, डिस्कस करने के लिए रेडी है बोला। आपको नहीं लगता यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने, सरकार ने आप लोग के साथ एक माइंड गेम खेला है? क्योंकि अभी तक उन लोगों ने एक एक्यूरेट डेट नहीं दिया। हर एक मुद्दा जब आते हैं तो हमेशा तारीख पे तारीख रह जाता है। देखिए डेट दिया गया है, अब ऐसा नहीं बोल सकता कि सरकार खेला है। देखो डेट एक पूरा मेंशन किया है, हर चीज़ में डेट मेंशन किया है, और कब शुरू करेगा ये मैंने खुद कराया है। अब ऐसा मत बोलिए कि डेट मेंशन नहीं किया, ये गलत बात है। हम खुद वहाँ में करा कि हम ये क्लियरली बोला है कि डेट में हर एक चीज़ का हम डेट लगाने दिया कि इसमें आप ये करेगा। और ये क्या बोलता है जो ईडी का को भी हम क्लियरली बोले, ईडी भी ये मंडे से वहाँ में रिकमेंड करेगा बोला है। उसके बाद चेयरमैन को भी मंडे से रिकमेंड करेगा बोला। ये आप ऐसा मत बोलिए कि आप जहाँ तहाँ मत बोल दीजिए कि हम लोग को माइंड गेम खेला है। ये माइंड गेम नहीं है, ये पूरा ऑर्डर निकला, उसके बाद डेट का साथ में निकला है, पूरा डेट का साथ में फिक्स। अगर आप लोग 13 पॉइंट अगर दे के अगर फेल हो गया तो आप लोग उसका क्या इशू होता है फिर? देखिए 13 पॉइंट दे के फेल होते हैं, देखो ये मेरा इशू नहीं है, हम क्लियरली बात बता रहे हैं। हम जस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप मीडिया सपोर्ट करते हैं, हम ऐसा पब्लिक पेरेंट्स हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप 13 पॉइंट नहीं हुआ तो आप नहीं पूछ सकते कि सोल्ड हो तो आप क्या करेगा। हम वहाँ में एक ये नहीं है, हम पन अरुणाचल का ना मेंबर है ना क्या है, हम उसको जस्ट हमको सपोर्ट के लिए बोला है। हम बोला है वो लोग दिखाया, डिमांड दिखाया है, और डिमांड को सक्सेस कराने के लिए मेरा ड्यूटी था, और हम सरकार को बोल दिया, सरकार कर देगा बोला है, दिखा दिया। और सक्सेस कराना नहीं कराना वो लोग को कमेटी बनाया है, कमेटी में अंशु भी है, और ये क्या बोलते हैं वो पन अरुणाचल का मेंबर लोग भी है। सक्सेस कराना नहीं कराना अभी वो लोग ऊपर डिपेंड करते हैं, अभी भाई बहन लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं बस। सर जो ये नल एंड वोइड वाला अभी जो है ना सर, इसमें क्या है कि अभी कुछ लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, बट अगर इनका सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है देन देयर वहाँ में नल एंड वोइड के केस में ऐसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने जेन्युइनली हार्डवर्क करके एग्जाम दिया था, तो उन लोग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले देगा? जो देखिए जूनियन कैंडिडेट तो हम तो ऐसा नहीं लगता है कि जूनियन कैंडिडेट, आप जबकि टॉपर ही जो टॉप मारता है, जो एक नंबर मारता है वो ही चोर होता है, और जो पीछे से आता है वो ही सही होता है। आप एक बार सोच के देखिए, हम तो ये इसमें हम लगता है कि 90% तो पैसा गिनने वाला होगा। 10% लोग भी तो लाइक वो देयर आल्सो एस्पिरेंट टैलेंट पर जो 10% टैलेंट मिलता है तो उसको री एग्जाम देने मिल रहा है ना, तो वो टॉपर करेगा क्या? वो टॉप करेगा कन्फर्म। अगर कोई टैलेंट आदमी जो अंडर टॉप 10 में आता है तो मान लीजिए री एग्जाम होता है, वरना वो टॉप 1 में आएगा, है ना। जो पैसा बेचने वाला आदमी, किनने वाला आदमी तो गिर जाएगा, है। तो इसलिए इसमें ये नहीं बोलना है कि ये क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलना है कि ये जो 10% लोग क्या करेगा। जो पढ़ाई जानता है, जो टॉप है वो टॉप ही होगा। थैंक यू। फर्स्टली आई मीन अरुणाचली, उसके लिए आप सोच लो, है ना। और हर एक अरुणाचली तो APCS के अंदर में एग्जाम देता ही है। How satisfied are you with today's outcome and then especially the null and void?
यहाँ पे जो है ना हम लोग को फिर से अभी ना आधा कच्चा वाला सब्जी मीट खिला के दे रहा है फिर से। You think the state government has kind of like played a mind game? दिस इज टोटली माइंड गेम ना, एंड पब्लिक समझ गया है और फिर से लंबा तानने की कोशिश कर, क्योंकि जितना सुना है ना करेगा तो हमेशा आदमी बोलता है हम भी कल करेगा। आई थिंक अल्टीमेटम भी टाइम भी डेट भी नहीं दिया है प्रेम ये अंदर में करेगा बोल के। वो न्यू चेयरमैन एंड अभी जो जितना मेंबर है ना ढूंढने के लिए एक कमेटी बनाएगा, वो कमेटी दरकार है ही नहीं, जो पूर्ण कमेटी रहने दो, बस अच्छा ला लेके आओ। अरुणाचल में इतना अच्छा है, हम लोग का ज्ञाति काको सर है, नानीबाद सर है, जो ओपनली करप्शन के अगेंस्ट बात करता है। कांग्रेस बीजेपी कोई भी आओ, उन लोग हमेशा अच्छा से बात करता है ना, उन लोग हमेशा खुल के ऐसे आदमी को लाओ ना। हम लोग कभी क्वेश्चन करेगा या तो भी अभी महबूब दादा वागे लोग है ना, देयर रिकॉर्ड्स आर क्लीन, कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं। उन लोगों को चेयरमैन बना के काम को पता कर दो ना, अभी पता कर दो, हो गया। अभी तक हम तो थोड़ा हम लोग अभी शांति भी हो सकता है, लेकिन बाकी कैसे वाला आदमी होगा नहीं बोल सकते ना। आदमी लोग बोल रहे हैं इसको जलाए उसको जलाए, ऐसे सोचने वाला आदमी लोग है, पता नहीं व्हाट गवर्नमेंट। जो अभी जो बंद कॉल है आप लोग का वो कंटिन्यू होगा? वो तो पता नहीं है कैसा होगा। हम तो चाहते हैं इंडिविजुअली, हम तो चाहते हैं और एक्सटेंड हो, जब तक ये फुलफिल ना हो एक्सटेंड हम तो ऐसे चाहेगा। लेकिन हम तो क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, हम तो और आई डोंट हैव द कैपेसिटी आल्सो। तेची पुरु जी ने कहा है कि जो ये अगर अभी आप लोग बंद कॉल करते भी है देन दे विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी कुछ होगा वो जो सब इंडिविजुअल के ऊपर पे होगा। बैन कॉल को तो कभी भी वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया भी नहीं है, जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की जितना उन्होंने तो हमेशा देयर आउटसाइड द फार ब्यूरो। और ये जो हुआ है ये भी तो पब्लिक वाला बैन कॉल ही था, इसमें जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी वाला बैन कॉल नहीं था। तो पुरु सर आउट हो जाने से भी अगर इफ द पब्लिक आर नॉट सेटिस्फाइड, वो लोग अनदर राउंड ऑफ नेक्स्ट राउंड ऑफ बैन कॉल कर भी सकता है। आई डोंट नो अबाउट इट। सो पीपल एज यू हैव सीन जो अभी हुआ है, जो हमारे सोल जोदू मैन जो तेची पुरु जी है उन्होंने जो है जो 13 पॉइंट्स थे चार्टर ऑफ डिमांड के, उन्हें सामने रख दिया है एंड द डिमांड्स आर फुलफिल्ड अकॉर्डिंग टू देम। बट इट सीम्स कि जो कुछ जो एक्सपीरियंस है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, एंड अभी के लिए उन्होंने ब्रीफिंग देने से मना किया है, साफ इनकार किया है। बहुत तेची पुरु एंड द एक्सपीरियंस जो है उन्होंने अभी के लिए मना किया है कुछ भी वीडियो उतारने से या फिर कुछ भी ब्रीफिंग लेने से, एंड उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही हमें बताएंगे कि कब वो जो ऑफिशियल ब्रीफिंग है वो देंगे।